Okay, fashion students, listen up. I have pulled all of those nightmares, cried over garments, and now I am on the other side as a fashion faculty. And I wish someone has told me these things when I was a fashion student. So today I'm gonna tell you all of those secrets, raw, unfiltered, no nonsense that no one talks about fashion designing, but I will. So if you are interested, then keep on watching. So the first and the most important pointer is going to be faculties are not always right when it comes to design. Yup, I said it and I am a faculty too. I think your design is well explained and well thought of by you only, and if you are not able to explain it doesn't mean कि आपका design बहुत खराब है. So you should be very confident and you should do a proper research about your design so that it stands out. क्योंकि कई बारी जो faculty को चीज़ अच्छी लगती है वो आपको अच्छी ना लगे या आपको जो अच्छी लग रही है वो उनको अच्छी ना लगे. So please try to defend your design with good logics and content. ऐसा नहीं कि कुछ भी बोले जा रहे हो and you are just arguing. That's not the way. But I think you should be confident and well researched when it comes to design so that you can defend it confidently. Second thing which is like most important but आधे से ज़्यादा fashion students भूल जाते हैं is eye for detail. Detailing is a very important. Clean work shows your design ethic and how serious you are towards your design career and towards your design. I think especially when it comes to garmenting, आपकी finishing details बहुत ज़्यादा matter करती है. Shabby work doesn't look designer, so I think you should definitely work on that if you are not working right now. Third pointer जो कि बहुत ज़्यादा important है and I think वो mostly सब भूल जाते हैं is quality over quantity. I think 4 amazing works are far more better than 6 shabby ones. So always work on your quality. 5 में से एक assignment छूट जाएगा चलेगा, but 4 should be phenomenal so that you guys get the amazing marks which you deserve. Next pointer is also going to be very important. Time management is the most essential thing when it comes to fashion design. Fashion design will test you to another level, and if you don't know how to manage your time, trust me, babe, it is only getting harder once you reach the next and the upper semesters. If you don't know how to manage your time, make planners, make to-do lists, make deadlines for yourself before your faculties make it for you. And if still it doesn't work, don't worry, you can speak to me. Just comment down below and I will surely help you. So yeah, जितनी जल्दी आप टाइम मैनेजमेंट सीख लोगे उतनी ज़्यादा स्मूदर और अच्छी जर्नी आपकी फ्यूचर में होने वाली है. नेक्स्ट पॉइंटर इज गोइंग टू बी जो मेरे साथ बहुत होता है, अवॉइड क्रिएटिव इन्फ्लुएंस, ट्रस्ट योर ओन प्रोसेस. लेट मी ब्रेक इट डाउन फॉर यू. इफ यू आर समवन लाइक मी जो किसी और का अगर काम देख ले तो इट जस्ट स्टक्स योर माइंड एंड फिर आपकी क्रिएटिविटी नहीं हो पाती है एंड आप बस दूसरे के डिजाइन के बारे में सोच रहे होते हो कि उसने ऐसा किया है, अच्छा उसका आउटकम मे बी ये आए, ऐसा ऐसा करके, एंड देन आपका जो क्रिएटिव माइंड होता है ना वो रुक जाता है. तो मैं आपको एक ब्राउनी टिप देने वाली हूँ कि स्टॉप लुकिंग एट समवन एल्सेस वर्क टिल द टाइम यू आर डन विद योर्स. उसके बाद आप जाके देख लो कि और लोग क्या कर रहे हैं, बट प्लीज पहले जाके मत देखो. दैट्स व्हाट आई यूज्ड टू डू. मैं पहले ही सोच लेती थी एंड फिर जाके देखना तो खैर लास्ट में ही होता था जब असाइनमेंट्स मिलते थे. बट व्हाट आई एम सेइंग इज कि अगर आपके दिमाग में भी ऐसा होता है कि आप कुछ देख लेते हो तो वही आपके दिमाग में चलता है, तो ट्रस्ट मी, सबका काम देखना बंद कर दो एंड अपने काम पे ज़्यादा फोकस करो. एंड ट्रस्ट मी, मार्केट में सब कुछ ऑलरेडी हो रहा है. यू हैव टू क्रिएट योर ओन यूएसपी. हाउ विल यू डू इट? द बेस्ट थिंग इज हिस्ट्री पढ़ना स्टार्ट कर दो. 90% ऑफ द आइडियाज आर देयर ओनली एंड फैशन इज अ साइकिल. यू मस्ट हैव लर्नड इट. तो जो जा चुका है वो एक और बार फैशन में जरूर आने वाला है. सो रीड मोर हिस्ट्री एंड यू विल गेट न्यू आइडियाज. नेक्स्ट पॉइंटर इज गोइंग टू बी, आई थिंक जो कि मैं बहुत ज्यादा कर चुकी हूँ बट आई थिंक ये किसी को भी नहीं करना चाहिए. डू नॉट एवर कंपेयर योर डिजाइन और योर सेल्फ विद अदर्स. ये फैशन स्टूडेंट के लिए ही नहीं है बट हर किसी के लिए है. कभी भी आपको किसी और से कंपेयर नहीं करना है. फैशन स्टूडेंट के लिए ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट इसलिए हो सकता है क्योंकि मे बी मेरा क्रिएटिव माइंड जो चीज सोचने में 4 दिन लगा रहा है वो किसी और को बस 1 दिन में आ जाए. बट दैट्स टोटली देयर इंडिविजुअलिटी. इसका मतलब ये नहीं है कि आपका प्रोसेस बहुत स्लो है, नहीं, आपका अपना पेस है और हर कोई अपने पेस पे काम करता है. सो प्लीज स्टॉप कंपेयरिंग अगर आप आज तक कर रहे हो तो. लास्ट पॉइंटर इज गोइंग टू बी विच इज लाइक वेरी इंपॉर्टेंट एंड ये मेरे बैच में जब मैंने फैशन डिजाइन करा था तो बहुत ज्यादा थी एंड मैंने वहां से भी सीखी है एंड ये मेरे अंदर भी बहुत ज्यादा है.
clap for others until it's your turn, and it is like so important to be happy if someone else wins, and या फिर वो अच्छा कर रहे हैं डिज़ाइन में या कहीं पे भी, तो उनको ज़रूर सपोर्ट करना. आई थिंक दे रियली नीड इट, एंड उन्होंने भी बहुत ज़्यादा हेल्प करी है. आई नो आपने भी बहुत ज़्यादा करी होगी, बट आपकी जब तक चांस नहीं आती तब तक दूसरों के लिए खुश होना सीख लो. सो लास्टली आई जस्ट वॉन्ट टू से दैट फैशन स्टूडेंट्स लाइफ इज वेरी टफ एंड आई नो इट, बट इंडीड इट्स द मोस्ट ब्यूटिफुल जर्नी you will ever come across. You will fall, you will rise, and you will learn so many different things, and it is going to be a beautiful experience. So if you like this raw and no nonsense talk today, then like, share and comment, and I will be seeing you in my next video. Now go and design something that screams you, I am rooting for you. Bye bye.